کلمہ مکہ شریف پر گونجا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، تمہارا خدا ایک ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہوں، میرے دستے برحق پہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کرم میں آ جاؤ۔ اب مصطفیٰ نے جب اتنی دعوت دی تو جو مصطفیٰ کو ابھی صادق کہتے تھے اب وہ مصطفیٰ کو خائن کہنے لگے، جو مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے وہ مصطفیٰ کو جھوٹا کہنے لگے، جو مصطفیٰ کو اچھا کہتے تھے وہ مصطفیٰ کو برا کہنے لگے، جو مصطفیٰ کو بیوٹیفل کہتے تھے اب وہ مصطفیٰ کو بیڈ پرسن کہنے لگے۔ اب مصطفیٰ سے لوگ متنفر ہو گئے اور میرے آقا کے دستے برحق پہ کلمہ تو کیا پڑھتے، مصطفیٰ کو برا بھلا کہہ کر کے واپس ہو گئے۔ امیہ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، عتبہ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، شیبہ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جناب والا مکہ کے ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ جسے توفیق دے وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ عرب کی دھرتی پر اللہ نے توفیق دی تو اسی عرب کی دھرتی پر جب ابو جہل اور امیہ جیسے ہزاروں کافروں نے انکار کیا تھا تو ابو بکر کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کے دامن کرم کو پکڑ لیا، حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت طلحہ بن زبیر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عبید بن جرہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب عرب کی مقدس دھرتی پر ایک جماعت مصطفیٰ کو مانتی ہے اور ایک جماعت مصطفیٰ کو نہیں مانتی، یعنی عرب میں دو پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی مصطفیٰ کی ہے اور ایک پارٹی دشمن مصطفیٰ کی ہے، ایک پارٹی میں ابو بکر ہے، دوسری میں ابو جہل امیہ شیبہ عتبہ ہے۔ اب ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی آگے بڑھے گا، مصطفیٰ بھی آگے بڑھیں گے، لیکن ابو جہل امیہ شیبہ عتبہ یہ کہتا ہے ہم نہ اسلام کو بڑھنے دیں گے، نہ بانیے اسلام کو بڑھنے دیں گے، ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم بانیے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب اس طرح کے نعرے جب مکہ شریف میں گونجے تو ابو جہل نے اعلان کر دیا اے دشمن اسلام، اے مکہ کے لوگوں تم میرا ساتھ دو تو میں اسلام کو مٹا دوں گا، محمد کو مٹا دوں گا، محمد کا نام لینے والوں کو مٹا دوں گا۔ عتبہ نے ساتھ دیا، شیبہ نے ساتھ دیا، امیہ نے ساتھ دیا۔ اب مکہ کے کافر اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے تو اسی عرب کی دھرتی پر ابو بکر میدان میں آ گئے، عمر میدان میں آ گئے، حضرت طلحہ میدان میں آ گئے، علی شیر خدا میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کر کے بہنے لگے اے ابو جہل سن، اے عتبہ سن، اے امیہ سن، اے شیبہ سن، تو اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے ہم اپنی گردنیں قربان کر دیں گے لیکن اسلام کو نہ مٹنے دیں گے، ہم خاندان کی قربانی دے دیں گے لیکن اسلام کو نہ مٹنے دیں گے، ہم جاہو جلال دے دیں گے لیکن اسلام کو نہ مٹنے دیں گے۔ گویا کہ 1450 سال پہلے مکہ کی زمین سے یہ نعرہ بلند ہو گیا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بڑا اسلام جیسے جیسے اللہ نے جس کو توفیق دی اسلام کے آغوش میں لوگ آتے رہے، لیکن کمزور تھا اسلام، اندرونی حصہ کمزور تھا اسلام کا۔ میرے مصطفیٰ ہمیشہ یہ چاہتے تھے، اس سوچ و فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے اللہ پاک اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا کی یا اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ عزت کیسے ملے گی؟ تو فرمایا بی اسلامی عمر، اے اللہ تو عمر کو مسلمان کر دے، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 6 عورتیں مسلمان اور 33 مرد مسلمان، 39 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ انگلی پہ گن لیا کرتے تھے لوگ، اے اتنے تھے مسلمان اور اندر سے کتنے کمزور تھے۔ ظاہری طور پر میرے آقا نے دل کی
तमन्ना जाहिर की। लोगों याद रखो, एक मुरीद होता है, एक मुराद होती है। सब मुरीद थे लेकिन उमर फारूक आजम मुस्तफ़ा की मुराद थे। मेरे आका ने हजरत उमर को रब से मांगा था, रब से चाहा था। मेरे आका ने अर्ज की, या अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे ताकि इस्लाम को कुव्वत मिल जाए। क्योंकि इस्लाम एक रोबो तबतबे वाले आदमी का नाम था, एक दबंग पर्सनालिटी का नाम था उमर फारूक आजम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुस्तफ़ा ने रात को दुआ की है और सुबह का सूरज जैसे ही निकला, दुश्मनों ने मैदान में लोगों को जमा कर लिया, पिंडाल के नीचे लोगों को जमा किया और कुर्सी खिताबत पर अबू जहल बैठा और बैठ कर के कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, तुम में से कौन है ऐसा आदमी जो मोहम्मद की गर्दन काट के ला करके मुझे दे दे? कौन है ऐसा आदमी जो पानी इस्लाम का खात्मा कर दे? जो ये काम करेगा हम उसको इनाम में 100 ऊंट देंगे और भी कुछ तोहफे उसको दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब ये इस्लाम के लिए, जब मुस्तफ़ा को मिटाने के लिए इस तरह के ऐलान अबू जहल कर रहा था तो उसी मजमे में वही उमर मौजूद थे जिसके इस्लाम के लिए अल्लाह के रसूल ने रात दुआ की थी। उसी मजमे के अंदर से और तो कोई नहीं उठा, यही रोबो तबतबे वाले उमर फारूक आजम खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, अबू जहल इस काम को मैं अंजाम देने वाला हूँ, यानी मोहम्मद की गर्दन मैं काटूंगा, यानी ये इस्लाम का खात्मा मैं करूंगा, उन पर हमला मैं करूंगा, अपनी तलवार से वार मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की कैसी दास्तान है, जरा सुनते चलिए। हजरत उमर ने ये ऐलान कर दिया, आज मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, बानी ये इस्लाम को मिटा दूंगा। अब उमर फारूक आजम ने तलवार ली है और आंखों में जलाल और गुस्सा है और जमाना उमर के नाम से कांपा करता था। उमर जिस रास्ते में गुजर जाते लोग रास्ता बदल दिया करते थे। किसी में इतनी हिम्मत व मजाल न थी कि उमर की आंखों में आंखें डाल करके बातें करता। ये उस वक्त भी हाल था जब उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था। अब तलवार लेकर, आंखों में जलाल लेकर के उमर फारूक आजम अपने घर से निकले, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए मोहम्मद को मिटाने के लिए, मेरे आका का नामो निशान मिटाने के लिए तलवार हाथ में है, आंखों में जलाल है, चेहरे पे गुस्सा है और एक गलत इरादा है। रास्ते में जैसे ही आगे बढ़े, एक हजरत अबू नईम नाम के सहाबी मिले, उमर फारूक आजम की कलाई को पकड़ा और कहा, उमर कहाँ जाते हो? कहा, इस्लाम को मिटाने, मोहम्मद का नामो निशान मिटाने। अबू नईम ने कहा था, ऐ उमर फारूक आजम, जिस पैगंबर को मिटाने के लिए चले हो, जिस पैगंबर का नामो निशान मिटाने के लिए चले हो, उस पैगंबर को पहले पे मिटाना, उस पैगंबर पे हमला बाद में करना। पहले जाकर अपनी बहन की खबर लो, अपने बहनों की खबर लो, इसलिए कि जिस नबी को मिटाने के लिए जा रहे हो उस नबी का तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई दोनों कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। से बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। से बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं, अगरचे नारा नहीं लगा सकते। नारा भी लगाएंगे इंशाल्लाह, जिंदाबाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। समझ रहे हैं आप? अगर नाच गाने की महफिल होती है तो सबसे अगली कुर्सी चाहिए, हर किसी को अगली कुर्सी चाहिए। समझ रहे? और नोट भी वो होगा जनाबे वाला, बिल्कुल नया, जो हार में चलता है, और जो सबसे गला हुआ फटा हुआ होगा वो जुम्मे की गुल्लक में चल जाएगा। जो कहीं नहीं चलता वो जुम्मे की गुल्लक में चल जाता है। ये हाल है इस मुसलमान कौम का। धोखा भी किसको देती है? उसको देती है जो दिलों के हाल से भी वाकिफ है, बेशक हक। जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों की तख्तियों पर लिखे हुए जुमले भी उससे पोशीदा नहीं। बहर सूरत क्या कहा? उस तरफ बाद में जाना, पहले इधर जाओ। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई कलमा पढ़ के मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा आदमी इतने गुस्से में चले और उसे ये पता चल जाए कि मेरे ही घर का आदमी इसमें आ चुका है तो कितना गुस्सा आएगा। और फिर वो भी उमर, अल्लाह अकबर। उमर का नाम लो तो जलाल तो खुद बखुद साद में आ जाता है। इतने जलाली थे उमर फारूक आज़म। कहा बहन और बहनोई की खबर लो, रास्ता बदल दिया, बहनोई की तरफ चल पड़े।
बहन के घर की तरफ दौड़े, मुस्तफ़ा के घर को छोड़ा, रास्ता छोड़ा मुस्तफ़ा का और अपनी बहन के दरवाजे को जाकर के खटखटाया और इतनी दबदबे वाली आवाज में अपनी बहन को पुकारा। बहर अंदर कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। वो समझ गई आज खैर नहीं है, आज भाई को पता चल गया है, आज भाई को किसी ने बता दिया है कि हम इस्लाम के आगोश में आ चुके हैं। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर बहनोई भी मौजूद थे। अब दबदबा उमर फारूक आजम का इतना था कि बहनोई अंदर कमरे में जाकर के छुप गए और बहन बाहर निकल करके आई और फरमाया भाई क्या बात है? उमर ने कहा मैंने सुना है तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती हो, मैंने सुना है तुम खुदा को एक मानती हो, अब इससे सबक भी ले, तुम भी लो, मेरी माँ और बहनें भी ले। ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादी थी और उस वक्त इस औरत का यह हाल था जब गिनती के 6 औरतों ने कलमा पढ़ा था। उमर फारूक आजम की बहन कहती है तुम मुझसे पूछते हो मैंने कलमा पढ़ा कि नहीं? हाँ हाँ मैं तुमसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन जब से इस्लाम का दामन पकड़ा है झूठ बोलना छोड़ दिया है। हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, हाँ मैंने मोहम्मद की गुलामी को कबूल कर लिया है। अब उमर फारूक आजम कहते बहन रजामंदी का सौदा है, तुम कलमा पढ़ना छोड़ दो तो तुम्हारा मेरा रिश्ता बाकी है, वरना मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हारी और मेरी मौत जीत आज के बाद बंद हो जाएगी। हजरत उमर से बहन ने कहा हम तुमसे छोड़ सकते हैं, तुमसे रिश्ता नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद और इस्लाम से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। इतना कहना था, उस जलाली उमर ने अपना कोड़ा निकाला और बहन के ऊपर कोड़ा बरसाना शुरू कर दिया। ये जमीन के ऊपर उमर मार रहे हैं, इतना मारते इतना मारते इतना मारते कि बहन पर बेहोशी तारी हो जाती, जमीन पे गिर जाती और कुछ देर के बाद होश आया तो उमर ने बहन से फिर कहा बहन अब बोल अब क्या इरादा है? उमर फारूक आजम की बहन कहती है तुम क्या समझते हो एक बेहोशी से इस्लाम छूट जाएगा, मोहम्मद की गुलामी छूट जाएगी? हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि जब मोहम्मद की गुलामी में आ जाता है तो इस्लाम का कलमा पढ़ लेता है, वो मरते मरते भी ये नारा दे करके जाता है गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरमाया तुम क्या समझते हो कि जरा सी बेहोशी तारी होगी और हमारा जज्बा खत्म हो जाएगा? नहीं, जो इस्लाम के आगोश में आ गया फिर उसका जज्बा ये पैदा हो जाता है गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर इतना कहना था। उमर फारूक आजम को फिर जलाल आ जाता है और इस मर्तबा इतना जलाल आया, इतना जलाल आया कि अपने कोड़े को लिया और बहन पे दोबारा बरसाना शुरू कर दिया। अब तारीख के चैप्टर ये बताते हैं, अब मुअर्रिखीन इस बात को यूं लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी बहन को इतना मारा कि जिस्म के अंदर से खून के फव्वारे बह निकले और बहन के जिस्म से खून निकल रहा था और उसी आलम में बहन फिर दोबारा बेहोश हो जाती है और जमीन पे गिर जाती है। जब हजरत उमर की बहन को कुछ देर के बाद होश आया तो आपने कहा बहन अब बोल अब क्या इरादा है? अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे मौत के घाट पे उतार दूंगा। तब बहन ने फिर ये कहा था वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ऐ उमर मैं इस्लाम से वापस नहीं आ सकती, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकती हूँ। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उमर के जिस्म पे कपकपाहट तारी हो जाती है, लर्ज़ा बरंदाम हो जाते हैं और बहन से पूछते हैं ऐ बहन ये तो बता ऐसी कौन सी ताकत है इस्लाम के अंदर, ऐसी कौन सी पावर है मोहम्मद के अंदर, ऐसा कौन सा जज्बा है इस्लाम के अंदर? तो बहन ने यूं कहा ना ताज पर न तख्त पर न ज़ौदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। न ताज पर न ज़ौदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। इतना कि जिस किसी ने 4 मीठी बातें कर ली तो अपना दीन छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है।
मुकद्दर पे जितना नाश करो ना उतना कम है। जो बात आज हमारी समझ में आ रही है वो आला हजरत 105 साल पहले कह करके चले गए। सुभान अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, जो हिफाजत कर रहा ना यही चोर है। जी सच है। 105 साल 125 साल पहले कह गए। हम अब आके समझें 7-8 साल से कि अच्छा इस शेर का मतलब ये था। जी जो हिफाजत कर रहा है वही ईमान का चोर है, अकीदे का चोर है। महफूज रहना, बचते रहना। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। कहा न ताज पर न तख्त पर न ज़ुहदो इत्तिक़ा